Welcome to a new lesson on Learn to Sketch. And today I want to do something really fun. Last time around I've been talking about some very boring stuff. We've been talking about lines and shapes and boxes, shadows and lights. Well, that's not all very interesting. Let's change our subject today. Let's talk about something very different and something fun. Let's talk about cartoons. Yay! You've seen cartoons. I do not need to tell you how to draw cartoons because anyone can draw any kind of cartoon. But I just want to help you out with some ideas. That's it. देखो सबसे पहले जो बेसिक्स हैं कार्टून के हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड द बेसिक थिंग फॉर अ कार्टून इज अ शेप. That's the first thing that you need to do when you're making a cartoon. You need to make a shape. And it's just as easy as that. So when you have a shape and you can put in some eyes, and making eyes for cartoons is very easy. We have learned it since we were very little, and you just draw these two eyes. What's the interesting thing about cartoons? You do not have to make the eyes of the same size. You do not have to make the eyes of the same shape even. That's the cool thing about cartoons. And if you're like feeling like it, you can make a nose or not. It's utterly your own decision. That's the fun thing about cartoons. If you want, you can give him ears. There you go. And just to make those ears interesting, just to make them feel like their ears, you just give them a little six here. That's it. And you just rub out a little part of this and a little part of that. बस थोड़ा सा इसको मिटा दें, and you've got a nice little cartoon. And if you want, you can give it some hair. तो हम अब जो दूसरा शेप है उसके अंदर ज़रा डिफरेंट किस्म का एक्सप्रेशन देते हैं. Let's give him some different kind of eyes. Maybe the eyes are, maybe they're joined together. And give him these thick, bushy eyebrows. One eyebrow is up, one eyebrow is down. Alright, I will tell you about how I made this mouth here. But not now. Just get some pictures into your head. Let's give him like very, very small eyes. Very small eyes. I have not thought this at all. I'm just going with the flow. मैं आप लोगों के साथ साथ सोच रहा हूँ. And that's how I go. And let's give him a big nose. And a big mouth. Give him lots and lots and lots and lots and lots of teeth. There you go. There's another cartoon here. Very interesting. And just for the sake of it, if you want, you can give him these two ears. एक यहाँ पे दे दें आप. अच्छा ये मैंने एक अजीब सी शेप बना दी थी. I'm really thinking hard about this. I am not getting any ideas. Alright, I'm still confused about this cartoon. I don't know what to make out of it. By the way, I'm using a very thick marker, if you can put it that way. हालांकि मैं digital इस वक्त use कर रहा हूँ. But you can use a marker, you can use a pencil, you can use whatever you want. Look at the amount of things you can do just to make expressions and stuff. So the first thing about expression is कि आप जो है एक बिल्कुल सादा expression है. Let's take a सादा वाला expression. मैं किस तरह से इन दांतों को शेप दे रहा हूँ और इसके पीछे थॉट क्या है. कार्टून जो हैं वो आपके अपने एनाटमी के साथ जुड़े हैं. आपकी इंस्पिरेशन है जिस वजह से आप ये कार्टून्स को बना रहे हैं. एंड द इंस्पिरेशन इज़ यू योरसेल्फ. आई मीन ह्यूमन बीइंग्स. दिस पार्ट आवर टीथ एक्चुअली ये इस तरह से जाते हैं. अगर आप इनको देखें ना तो ये राउंड जाते हैं इस तरह से. ये बड़े वाले दांत आते हैं, बड़े आगे सामने, फिर उसके बाद दूसरे दांत होते हैं. और नीचे वाले जो दांत होते हैं वो भी कर्व में जाते हैं. ये अगर उनका आप टॉप ले लें. Remember when I was talking about boxes? That's why when I'm making these teeth here, मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको इस तरह करके क्रिसेंट की तरह से थोड़ा सा पीछे लेके चला जाता हूँ. बस ये आपकी जो शेप है, आपका जो कार्टून है, उसको और ज़्यादा डायनेमिक कर देते हैं और कुछ भी नहीं है. What if suddenly I tell him something really sad? Like tomorrow there will be no rain. He will turn upset. Upset होने से क्या होगा? Now his eyes, they're drooping downwards, and his face, his lips, everything is drooping. Everything is drooping like this. Everything is drooping. Everything is going down, down, down.
गो विद द डायनामिक्स के कहाँ हर चीज़ यानी वेयर डू यू फील थिंग्स गो when you're happy everything is going up, everything is going up, everything is going up, see, but when you're sad everything is going down. So that's the dynamics when you're making cartoon. और आप लोग कभी देखें when you're looking at cartoons television के ऊपर तो देखेंगे किस तरह से इन चीज़ों को cartoonists करते हैं. When we're making it thoughtful, what do we do? Let's see. So this guy is thinking, sure. And when we're thinking, we're usually looking at the right side of our head, saying, and maybe one eyebrow is down, maybe one is up. Everything is pointing towards this one direction. Eyes are going here. The eyebrows are sort of flowing in this direction. The mouth is probably going in the opposite way, but this is the tension that it creates, right? जो tension आ रही है ना यहाँ पे बीच में, eyes इधर जा रहे हैं और mouth इधर जा रहा है, that gives you that idea कि ये सोच रहा है. और सोचना जो होता है that is something जो सोचते हैं लोग, not all of us, sorry, but जो सोचते हैं उनको पता है कि कितना मुश्किल अमल होता है सोचना. So there you go. So this guy is thinking. Maybe उसके पाँव के ऊपर मैंने जोर से अपना पाँव रख दिया. अब क्या होगा? His eyes will get big, the pupils will get small. The pupils are going small, the eyes are getting big. Maybe we make these little lines here. All right. मैं थोड़ा सा इनको साइड पे कर देता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट सम मोर एक्सप्रेशंस व्हाइल वी आर एट इट. जब एनिमेटर्स होते हैं जो कार्टून्स बनाते हैं, जो आपको जिस तरह टॉम एंड जेरी और मिकी माउस एंड ऑल दैट, जो आपको मूवमेंट देते हैं कार्टून्स के अंदर, जब वो एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, जब वो कैरेक्टर बनाते हैं, दे हैव टू मेक मोर देन 500 एक्सप्रेशंस फॉर वन कैरेक्टर. और कोई एक्सप्रेशन आपके जहन में आ रहा है? एंगर तो हमने बनाया ही नहीं. एंगर में हर चीज़ जो है वो बीच में आ रही होती है, हर चीज़ एक टेंशन के अंदर आ रही होती है. लेट्स गिव हिम सम रेज. मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ कि हम किस तरह से चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू मोर एक्सप्रेशंस. व्हेन यू सी हियर, what you see, everything is going towards the center, everything. और यहाँ पे क्या हो रहा है? Everything is coming out. That's the dynamic of it. That's इस तरह से आप इसके अंदर movement दे रहे हैं. Just looking at this one piece of drawing gives you a very very good idea कि इसके साथ क्या हो रहा है. Let's just finish off this expression sheet here. इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन शीट, जिसके अंदर आप एक्सप्रेशंस डिफाइन करते हैं. रोना, हंसना, रो तो रहा नहीं है, वी हैवंट मेड हिम क्राई. हम लोग सैडनेस के अंदर से वी टेक दिस एंड वी टेक दिस, और ये जो नीचे का लिड होता है ना, वी जस्ट ब्रिंग इट अप. मेकिंग अ कार्टून इज नॉट जस्ट मेकिंग आईज और उसके आपने दांत बना लिए, मुंह बना लिया. दैट्स नॉट इट. यू हैव टू थिंक अबाउट सम डायनामिक्स. और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कोई किसी ने इसके बारे में फ़िलासफ़ी लिखी है कि इसकी लाइन इस तरफ जानी चाहिए और इसका ये चीज़ ऊपर होनी चाहिए, ये चीज़ नीचे होनी चाहिए. नो 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 नो. जब आप रोते हैं, हंसते हैं, कभी शीशे के सामने जाके लुक एट योरसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स टेक जस्ट सिंपल शेप, वन शेप, एंड लेट्स टेक मिस्टर सर्कल. तो ही इज़ नॉट जस्ट सर्कल, ही इज़ यहाँ ऊपर से थोड़ा सा टेपर्ड है, यानी थोड़ा सा ये स्क्वीज्ड है. तो इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन एग, बट ही इज़ नॉट एन एग, थोड़ा सा और चौड़ा है. लेट्स गिव हिम eyebrows and let's give him these eyes. There you go, that's a happy character. ये बहुत बेसिक आइडियाज़ हैं, ये कुछ बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कार्टून्स के ऊपर अप्लाई होते हैं. एक होता है स्क्वॉश. फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ऊपर से आके गिरा, तो जब ये ज़मीन को टकराएगा तो इसके साथ क्या होगा? दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो इसके ऊपर एक फोर्स लगी है. फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल नीचे आ रही है, जब नीचे आ रही होती है तो ये पहले स्ट्रेच करती है, और जैसे ये ज़मीन के साथ टकराती है तो ये स्क्वॉश हो जाती है, यानी ये जो है नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगता है, तो ये यहाँ से और यहाँ से फैल जाती है. तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्वॉश. और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेच. तो दिस इज़ लाइक ही इज़ फॉलिंग डाउन, एंड दिस इज़ व्हेन ही हिट्स द फ्लोर. अच्छा, मैंने एक काम क्या किया, मैं इसकी आइज़ जो है, ये सेंटर है इसका,
और मैं इसकी आईज और लिप्स को थोड़ा सा राइट साइड की तरफ लेके चला गया। उससे ये हुआ है कि इस कार्टून के अंदर फॉर्म आ गई है। फॉर्म आपको याद है, मैंने लास्ट लेसन में बताया आपको, इट गिव्स द 3D इफेक्ट टू योर ड्राइंग। अब अगर इसको आपने ऐसा दिखाना है कि जैसे बहुत तेज भाग रहा है, अभी हमने ना इसके हाथ बनाए ना इसके पाँव बनाए हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आप यहाँ पे यू कैन यूज स्ट्रेच। के पीछे लाइंस लगाई और एक क्लाउड बना दिया। बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको ये स्मोक दे दिया और ये यहाँ पे लाइंस लगा दी और ये फुल कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह से रुक जाए। And these lines, they show movement. Like he's fallen flat on his face. Let's talk about easy hands. आपको बिल्कुल सिंपल हैंड्स बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा कैरेक्टर है और ये इसकी आईज हैं। आपने सबसे पहले तो आर्म्स बनाए, इजी, ये दिस मच इज इजी, दिस मच यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। और आपने जो है यहाँ पे एक ओवल बना दिया, यहाँ पर भी आपने एक ओवल बना दिया। अब आपने सिर्फ इसका एक थंब देना है यहाँ पे और यहाँ पे भी। देयर यू गो। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो हैं हैंड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया कि हैंड्स जो होते हैं वो कितने सिंपल हो सकते हैं। कि सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका जिसको आप हथेली कहते हैं, द थिंग दैट यू कॉल योर पाम। और फिर हम इसका जब थंब बनाते हैं तो इस तरह की शेप के साथ और इसके साथ एक बीच में राउंडेड सी जगह बना देते हैं। तो ये जो है आपका जो थंब है, ये जिस तरह से हथेली के साथ जुड़ा हुआ है, आपको नज़र आएगा कि एक बहुत बड़ा पोर्शन आपकी एक लाइन जो है यहाँ पे बनी। कार्टून्स में मोस्टली अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 फिंगर्स होती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि एनिमेटर्स को बहुत सारे ड्राइंग्स करनी होती हैं एनिमेशन करने के लिए, तो वो लोग 3 फिंगर्स बनाते हैं। आप 3 बना सकते हैं, आप 3 बना दें, आप 4 बनाना चाह रहे हैं आप 4 बना दें, और अगर आप 2 बनाना चाह रहे हैं निंजा टर्टल की तरह आप 2 बना दें। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर कैरेक्टर। तो हम जो है यहाँ पे वी मेक 1। अच्छा, इसका ख्याल रखना है कि ये जो मैं फॉर्म बना रहा हूँ ना यहाँ पे, देखें ये आपके जो मैंने लेसन आपको पहले करवाए, ये इन चीज़ों से ये चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ बेसिक शुरू में बताया। यहाँ से शुरू होता है, ये ज़रा छोटा इसका डायमीटर होता है और ये कार्टून्स के लिए होता है, ठीक है। और ऊपर जाके इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर थोड़ा सा गैप, छोटा सा गैप देके आप दूसरी फिंगर बनाएं और फिर थोड़ा सा गैप देके आप तीसरी फिंगर बनाएं। देयर यू गो। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि ये जो नीचे वाला एरिया है इसके अंदर ये कर सकते हैं एंड देयर यू हैव, इजी पीजी। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। बंद हाथ होता है, उसको किस तरह बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाना ईजी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हाथ को बंद दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह करके, और यहाँ से अगर आप 1 2, अब ये लगेगा जैसे हाथ आपका बंद है, दैट यू हैव ड्रॉन अ क्लोज्ड हैंड। ये कैसे? इट्स सो इजी, इट्स सो इजी। होता ये है कि जब आप हाथ को बंद करते हैं, फिस्ट बनाते हैं, इसी चीज़ से हमने ये वाले आइडियाज़ लिए। अगर आपने हैंड बनाना है कि उसने जो है एक फिंगर पॉइंट की है, तो आपने सर्कल बनाया, आपने फिंगर बनाई, ठीक है। ये आपने बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे बनाया, मगर इसके अंदर जो थंब है ये आया और ये हो। ये थंब जो है अब यहाँ से इट्स नॉट आउटसाइड, मगर ये रोल करके अंदर की तरफ आ रहा है। इसी तरह से जो दूसरी फिंगर्स हैं वो आप इस तरह करके ओवल बना देंगे। एक ओवल यहाँ पे बन गया एंड देयर यू हैव इट। इट इज़ सो सिंपल। सिर्फ ये किसी ने बताया नहीं था अभी तक। अगर हमने 2 फिंगर्स दिखानी है तो हमने जो है एक फिंगर बनाई, दूसरी फिंगर बनाई, तीसरी फिंगर अंदर की तरफ ले आए। ईजी। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? मैं जितना सिंपल कर सकता हूँ आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा एक फिस्ट बन गया। इस कैरेक्टर के ऊपर
अगर आप यहाँ पे सिंपल ये 3 फिंगर्स बना दें, इसमें और ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगे, लुक मच बेटर। इसीलिए जो है मैंने उस वक्त फिंगर्स नहीं बनाई थी, आपको सिर्फ दिखाने की, ये बेसिक आपको समझ में आ जाए तो हम लोग फिर फिंगर्स की तरफ आ सकते हैं। एक इसका जो है हम साइड पोज बना देते हैं, जो राउंडनेस है पाम की वो ओवल हो जाए और चीज़ें जो है वो हमारी तरफ आ जाएंगी। तो ये एक फिंगर हो गई, ये दूसरी फिंगर हो गई और तीसरी फिंगर जो है वो इसके पीछे चली। आप जो है यू सिंपली इरेज दिस लिटिल पार्ट इनसाइड। पता है क्या, आप लोग इरेजर नहीं यूज़ करें। व्हेन यू आर लर्निंग टू ड्रॉ डोंट यूज़ एन इरेजर, कोई मसला नहीं है। वैसे तो इरेजर जो है इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ योर इक्विपमेंट जिससे आप ड्राइंग करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ड्रॉ करना सीख रहे हैं ना, तो जस्ट टू गेन कॉन्फिडेंस, जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं ड्राइंग कर लूँगा यार, कोई मसला नहीं है, तो आप इरेजर को साइड में कर दें एंड जस्ट ड्रॉ। डोंट थिंक अबाउट कि यार ये लाइन गलत हो गई, ये लाइन सही है, जस्ट गो विद द फ्लो। अब ये जो है इसने हाथ अपने सीधे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसके हाथ ले आएंगे। ये मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, ये एक थंब बनाया, उंगली बनाई, उंगली बनाई, उंगली बनाई, ठीक है। और मैंने जो है इसको फॉर एग्जांपल ये मुझे वेव कर रहा है। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। अब ये जो आर्म है ना इसका, या तो मैं इसको पूरा इस तरह करके कर्व कर दूँ, थोड़ी सी लाइन यहाँ से निकाल दें, तो एकदम से जो है आपका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी जगह पे आती है, हाथों के अंदर, फिंगर्स के अंदर। ये मैंने इसका एक पाँव बना दिया और एक पाँव जो है मैंने इसका ऐसे करके बना दिया। अच्छा, अब ये जो पाँव है ये क्योंकि हमारी तरफ उठा हुआ है तो इसके हमें नीचे का सोल नज़र आ रहा होगा, है ना। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके लाइन बना देंगे। अगेन दिस इज ऑल अबाउट नोइंग द बॉक्स। डब्बे का पता होगा ना, तो फिर आप इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट नोइंग द बॉक्स एंड ऑल्सो नोइंग अबाउट द फॉर्म। अब हम आ गए हैं पोजेस के ऊपर। मैं इसके पाँव को थोड़ा सा स्ट्रेच करवाता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रेच कर रहे हैं और लुक एट दैट। ये मैंने क्या किया, अपने टोज के ऊपर आते हैं तो आपका हील ऊपर हो जाता है और आपका जो टो है आप सारा का सारा वजन अपने टोज के ऊपर डालते हैं। तो दिस इज द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग हियर। और ये वाला हाथ जो है यहाँ पर भी मैंने स्ट्रेच दे दिया है, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच दे देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं क्योंकि हाथ अभी तक हम अंदर से बना रहे थे, मैं इसके हाथ को उल्टा करके बना देता हूँ, ठीक है। जब थंब अंदर की साइड पे होगा तो इसका मतलब है हम ऊपर की साइड देख रहे हैं हाथ, समझे। ये चीज़ जो है ये आपको प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगी इसके अंदर भी। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये he is very happy and he is flying, maybe he is dancing। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर हमने स्ट्रेच कर दिया और यहाँ पे हमने बेंड दे दिया, यहाँ भी स्ट्रेच है, यहाँ पे जो है हल्का सा वी लुकिंग एट अ कर्व हेयर और फिर हम लोग जो है वी लुकिंग एट द अपर पोर्शन ऑफ द फुट। व्हाट इफ ही इज सैड, व्हाट इफ ही इज सैड। जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशंस के अंदर बताया था, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज मेल्टिंग। ऐसे लग रहा है जैसे ये मेल्ट कर रहा है। आइसक्रीम कौन होती है ना, मेल्ट करती है? नहीं करती, आप लोग पहले ही खा जाते हैं। नाउ लेट्स मेक हिम एंग्री, लेट्स मेक हिम रियली रियली। Almost about to pounce on somebody. You can see the tension that I have tried to give into him. तो इसी तरह से कैरेक्टर के पीछे फॉर एग्जाम्पल ही इज फीलिंग वेरी प्राउड। तो प्राउड में मैंने क्या किया, ये बेली इसकी बड़ी कर दी।
So he's standing like he's got a medal. तो ये जो है आपके पास poses हो गए, and you have to practice with them. I'll just finish off this lesson with this. Keep practicing these poses and these cartoons. और अगर आपको कोई और idea आ रहा है about some other kind of cartoon, if you think that I've left something out, तो मुझे ज़रूर याद दिला दें. Alright, take care. If you like my channel, if you like my tutorials, do subscribe and have a good time. Have a good day. Bye bye.